A very warm welcome, everyone, to all the members present over here, and especially a very warm welcome to our honorable faculty, CA Manoj ji. I would like to invite Dhaval sir for the welcome address, and then I will introduce the faculty. Thank you. I, CA Dhaval Kothari, Chairman of Jodhpur branch of CRCF ICI, welcome you on today's virtual CP meeting on intricacies in reassessment proceeding. I extend a very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, our own CA Manoj Gupta ji. I also welcome all managing committee members, all the senior member of profession, participants and viewers. Honorable Supreme Court, by its judgment, changed the situation. We all have many questions after this decision. Hopefully, after this VCM, we will be able to better understand this provision. Tomorrow morning, we have a sports event for the members. I request all the members to participate in maximum. By these words, over to you, Pooja ji. Thank you so much, sir. Now, I would love to introduce, Pooja Dhoot, the Secretary of Jodhpur branch of ICI, would like to introduce our faculty, our honorable faculty, who's from Jodhpur itself. Sir, firstly, we have honored to have you here on this platform, and we would like to learn from you many things which we are in doubt of. CA Manoj Ji Gupta. CA Manoj Ji Gupta has qualified in year 1996 and is in practice for last more than 21 years. He is currently a Secretary Tax Bar Association, Jodhpur. He was co-opted member of ICAI Committee on International Trade and WTO for the year 21-22. He remained member of Direct Tax Committee of CIRC of ICAI. He has a flair of reading and writing, and he has given so many articles on GST and direct taxes. His contribution in GST and income tax on WhatsApp group is also worth noticeable and applauded. He is analyzing the finance bills in 1996, and since Finance Act 1996 till recently enacted Act Finance Act 2021, he analyzed and commented upon each single bill. He is an active speaker on various forums and delivers lectures on income tax. And he has also authored many books on direct taxes, like Direct Tax Ready Reckoner, Handling Tax Audit. It's seriously a pleasure, an honor to have you on this platform, sir. I welcome you, and I would request you to start with our webinar. Thank you. Chairman, Jodhpur branch of ICAI, Secretary Pooja Dhoot Madam, and all the present members for the today's session. Let me share the screen. I think so visible. Visible. So reassessment law has been continuously changed by the government. Those who are old in the practice would recall that first such change was happened in 1/4/1989 when the reassessment provisions were amended fully, and again in 2021 government again changed the entire scheme of reassessment. Same is the case with search assessment. Prior to block assessment introduced in 1995, there was old assessment procedure where such assessment were made under section 143, read with 147 and 148. 144 even applied. And then government went to block assessment 115 BH, BI. And then government again went to another assessment procedure 153 ABC. And 2021 government back to square one. Again they started the procedure
in the age old 143, 147, 148. हिंदी में रखें, इंग्लिश में रखें? सर चलेगा, दोनों ही चलेंगे सर। ठीक है। बेटर अपने ओन लैंग्वेज हिंदी है, अगर हाइब्रिड लैंग्वेज होगी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये रीअसेसमेंट और सर्च का प्रोसीजर बार बार गवर्नमेंट चेंज करती है। इस बार गवर्नमेंट ने बड़ा अबाउट ऑब्जेक्टिव लिखा था कि लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ये स्कीम लाए हैं, और इस स्कीम के आते ही जो लिटिगेशन हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। पूरे देश में 9000 रिट्स फाइल हुई थी, 90,000 नोटिस इशू हुए थे, और सारी हाई कोर्ट्स ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, और अभी 148A पर भी लगातार कोई ना कोई जजमेंट आ रहा है। 12 मई का दिल्ली हाई कोर्ट का भी आया है। अभी आज जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। तो ये सारी बातें अपन करते हैं, नया प्रोसीजर भी पूरा समझते हैं। पहले बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है 1/4/2021 से और अभी तक कंटिन्यूइंग है, उसके बारे में शुरू करते हैं। सबको ध्यान है कि नोटिस इशू हुए थे 31/3/21 के बाद, 1/4/21 से लेकर 30 जून के बीच में। ज्यादातर नोटिस अप्रैल के महीने में इशू हुए थे। ये नोटिस 2013, 14 और 14, 15, 15, 16 असेसमेंट ईयर के लिए मेनली हुए थे। ओल्ड लॉ में टाइम लिमिट थी 6 साल तक नोटिस इशू हो सकता है अगर इनकम एक्सीडिंग असेसमेंट है, एस्केपमेंट है 1 लाख और उससे कम है तो 4 साल। सिमिलरली सर्च एंड सीजर में 6 साल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीओपनिंग होता था, और उसके बाद 4 साल और हो सकता था अगर 50 लाख से ज्यादा की एसेट सर्च में मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने ओल्ड लॉ की जो टाइम लिमिट है उसको टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बढ़ा के 30 जून 21 कर दी। और यहीं पे चैलेंज शुरू हुआ क्योंकि 1 अप्रैल 21 को हमारे पास 2 लॉ थे, एक ओल्ड लॉ हो गया और एक न्यू लॉ हो गया। एसएससीज ने इन सारे नोटिस को चैलेंज किया, ज्यादातर लोगों ने जिनकी रीच में था रिट करना, और इन नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज किया क्योंकि ये ओल्ड लॉ के अंदर इशू हुए थे। तो हाई कोर्ट में मैटर गया। सबसे पहला जजमेंट इसमें टोला जो था, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट, टोला जिसको हम बोलेंगे, उसमें 2 बार इन्होंने डेट बढ़ाई थी, और उसमें गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया था कि फॉर द पर्पसेस ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 द प्रोविजंस एज ऑन 31/3/2021 बिफोर अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 शैल अप्लाई। यहीं पर ऑब्जेक्शन था कि 2 रेजिम एक साथ ऑपरेट करने लग गई। एक नया नोटिस, नए लॉ में भी आप नोटिस दे सकते हैं, पुराने लॉ में आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी पर ऑब्जेक्शन रहा, और इस ऑब्जेक्शन को लेकर के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले इन नोटिस को क्वेश किया था, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट बीपीआईपी इंफ्रा में, और दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन कोहली के केस में कैटेगोरिकली इस नोटिस को तो क्वेश किया ही किया था, साथ में नोटिफिकेशंस को भी क्वेश किया था। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट अभी लेटेस्ट में आया है टाटा कैपिटल के केस में। तो इन सभी केसेस में जो हाई कोर्ट्स ने ग्राउंड लिए, जो ग्राउंड अप्रूव किया था वो ये था कि एक तो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से डेट बढ़ाना जो है वो किसी तरह से गवर्नमेंट की पावर में नहीं था। एग्जीक्यूटिव इस तरह से स्टैट्यूटरी डेट्स को नहीं बढ़ा सकती, और 2 रेजिम एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि इट्स ए केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नॉट रिपील। इसमें मैं बता दूं, एक फाइबर बोर्ड्स का सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिपील होने के बाद भी पुराने लॉ में नोटिस दिए जा सकते हैं। ऐसा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है फाइबर बोर्ड्स के केस में, 2015 का है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपील होने के बाद भी सेक्शन 6 और 6A ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई जारी रह सकती है टिल द टाइम लिमिट्स परमिट्स अंडर द ओल्ड लॉ। लेकिन इस आर्गुमेंट पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पे रिपील हो गया था लॉ, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट हो गया, नया लॉ आ गया, तो आप नए लॉ में जो करना है करें, पुराने लॉ में आप बार बार डेट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से टोला के अंदर जो डेट बढ़ाई थी उसको तो कैटेगोरिकली उड़ा दिया कि ये डेट तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। और लास्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो नए लॉ में आप इशू कीजिए नोटिस 148A का प्रोसीजर फॉलो करते हुए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं।
तो इस तरह से हाईकोर्ट्स ने, सभी हाईकोर्ट्स ने यही कहा, एक ही थ्योरी चली सभी कोर्ट्स में, तो सभी कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि आप नए लॉ में ही दे सकते हैं नोटिस, पुराने लॉ में नहीं दे सकते हैं, और नए लॉ में अगर आपके पास टाइम है तो आप आज भी दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, आशीष अग्रवाल का वही केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट्स ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, और हाई कोर्ट्स ने जो भी जजमेंट दिए वो बिल्कुल सही दिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइडली ये मान लिया कि टोला के अंदर जो गवर्नमेंट डेट बढ़ा रही थी वो गलत बढ़ा रही थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 90,000 नोटिस इशू हुए हैं और रेवेन्यू को इस तरह से रेमेडीलेस नहीं किया जा सकता है कि उनके पास कोई रास्ता ना बचे काम करने का, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता यह है कि जो नोटिस 148 में इशू हुए अप्रैल से लेकर जून के बीच में, उन नोटिस में उनको उन्होंने कहा कि इनको माना जाएगा 148A के तहत दिया हुआ आपका शो कॉज नोटिस। 4 मई 2022 से लेकर के 30 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर्स सारा मटेरियल रिलाइड अपॉन जो है वो सप्लाई करेंगे, और एसएससी विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके बाद जो प्री इंक्वायरी जो होती है 148A में, अभी हम आगे देखेंगे, उस इंक्वायरी को डिस्पेंस विद कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि वैसे भी ये इंक्वायरी डिस्क्रिशनरी है तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको डिस्पेंस विद कर दिया। और फिर कहा कि इस 4 मई से 30 दिन के अंदर तो असेसिंग ऑफिसर आपको 148A के तहत सारा मटेरियल देगा, और उसके बाद 2 वीक में आप अपना रिप्लाई देंगे, ऑब्जेक्शन देंगे, और उसके बाद वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नए सेक्शन में आप 148 में नोटिस दे सकते हैं, लेकिन 149 के तहत जो टाइम लिमिट की डिफेंसेस अवेलेबल हैं वो एसएससी को रहेंगी। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटी कोई टोला की एक्सटेंशन तो किया ही नहीं, तो 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 की वो जो नोटिस है उनकी वैलिडिटी को उन्होंने छुई भी नहीं। टाइम लिमिट नोटिस इशू करने में कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सब सेक्शन 1 हो गया, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी नोटिस इशू करते समय फॉर द असेसमेंट ईयर प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2021-22 से पुराना कोई असेसमेंट ईयर के लिए अगर आप कोई नोटिस दे रहे हैं तो वो नोटिस नए लॉ में आप तभी दे सकते हैं जब ओल्ड लॉ में भी वो नोटिस आप दे सकते थे। इसकी इम्प्लीकेशंस अपन अभी समझेंगे। तो ये इसका फर्स्ट प्रोविजन का मोटिव है। लेकिन डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट है, जैसा अभी तो बहुत चल रहा है गुड़गांव वाले केस में, डिपार्टमेंट अपने ही तरह से इंटरप्रेट करता है। और गुड़गांव वाले केस में भी आप देखेंगे तो सेक्शन 132 में ABCD, मतलब मैंने तो अभी व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, भाई यही लिख देते हैं कि किसी भी कानून में कभी भी जब भी अपराध साबित हो जाएगा तब देख लेंगे, अभी तो एक बार हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो और लिख रखा है। हाँ, और लिख रखा है, मतलब नोट ऑफिसर को खुद ही क्लियर नहीं है कि ऑफेंस कौन सा बन रहा है, और ऑफेंस वैसे बन ही नहीं रहा है उसका, तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। ना तो A में उसने कोई फर्जी इन्वाइस किया है, ना B में उसने कोई ATC लिया है, लेकिन डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ भी इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2022 11 मई 2022 का इशू किया। इसमें एक मजेदार बात यह है कि एक लेटर जो है शेयर हुआ था बीच में, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ग्रुप ने डिपार्टमेंट को लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और उसमें जो ओपिनियन उन्होंने फ्रेम करी है वो हम आगे, अपनी भी ओपिनियन आज भी वही है। तो और लेकिन CBDT ने एक नया ही ओपिनियन बना लिया। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा टोला अप्रूव कर दिया, हमारे सारे नोटिफिकेशंस अप्रूव कर दिए टोला के अंदर जो डेट एक्सटेंशन थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे कुछ नहीं कहा और लास्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने जो कुछ किया सही किया। तो इसका मतलब ये है कि टोला वाला भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया। दूसरा ये कहते हैं हम ट्रेवल बैक करेंगे टाइम में और पीछे जाकर के फिर वापस लिमिटेशन वहीं से काउंट करेंगे जहां हमने वो नोटिस दिए थे। ये कौन सा ट्रेवल कहाँ पे आया है इनके पास? सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कोई जजमेंट में दिया नहीं है। तो इसका इन्होंने ये निकाला कि 13, 14, 14, 15, 15, 16 में अगर 50 लाख से ज्यादा का मैटर है इन द फॉर्म ऑफ असेट तो आप नोटिस आज भी दे सकते हैं।
50 लाख से कम का है तो उन्होंने खुद मान लिया कि वो तो खत्म हो गया, 50 लाख से कम का नोटिस 13, 14, 14, 15, 15, 16 का अब नहीं आएगा। उसका एक उन्होंने बोला है कि असेसिंग ऑफिसर्स को बताया जाएगा तरीका कि उन नोटिस को कैसे वो सिस्टम में डिस्पोज ऑफ करेंगे। उससे तो वो तो इंटरनल मैटर हो गया, एसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है। 16, 17, 17, 18 में इन्होंने फिर कहा है कि 149(1) ये इसमें इन्होंने कहा है कि 3 साल वाला हिसाब पकड़ा है। तो 16, 17 के 3 साल तो पूरे हो गए 31/3/20 को। अब ये कहाँ से उसको बढ़ा रहे हैं और कैसे बढ़ा के 31/3/22 में ये कह रहे हैं कि हम 149(1) जो 3 साल तक वाला है उसमें देंगे। तो ये सारा इन्होंने डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है, इस पर अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे सारी बात। डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन प्राइमा फेसी लगता है और वैसे शायद चैलेंज हो भी है। एक रिव्यू पिटीशन तो फाइल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस, और ये डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन भी चैलेंज होगा क्योंकि रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया है तो कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन उस फैसले से बाहर नहीं जा सकता है। आप उस फैसले के बाहर जाके कोई नहीं दे सकते और डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज को उसके लिए कंपेल नहीं कर सकते बाउंड फॉलो करने के लिए। बहुत चल रहा है इस पे मैटर, हो सकता है इसकी इंस्ट्रक्शन को भी चैलेंज किया जाए। तो अभी ये हो रहा है कि नोटिस वापस इशू हो रहे हैं। 148A में कुछ अपने पास आए भी हैं, 13, 14 के भी आए हैं, 14, 15 के भी आए हैं। तो अपने को तो इसको ऑब्जेक्शन करना है, मेरे हिसाब से टाइम बार्ड है, तो आप ऑब्जेक्ट कीजिए कि साहब ये सही नहीं है। और अगर 148 आता है तो फिर अगेन रिट में जाना पड़ेगा और फिर वही लिटिगेशन चालू होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन नहीं आ गया तो। ये अपना मोटा मोटी करंट कंट्रोवर्सी है। ऐसी नोटिस के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि नोटिस साइंड हो गया 1 अप्रैल 21 को, या मान लीजिए अब 31/3/22 को भी कुछ लिमिट खत्म हुई है, तो 31/3/22 को हो गया और सर्व उसके बाद हुआ, तो उसमें क्या होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है RK उपाध्याय का, उसमें तो उन्होंने कहा कि साइनिंग इंपॉर्टेंट है, सर्विस का इतना कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अभी जो ईमेल से नोटिस आ रहे हैं इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है दाऊजी आभूषण भंडार प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डिजिटल साइन करने के बाद नोटिस तब तक असेसिंग ऑफिसर के हाथ से बाहर नहीं होता है जब तक कि वो कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर ना करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटली साइंड नोटिस 31/3/22 को कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने, तो वो कंप्यूटर रिसोर्स में जब तक नोटिस इशू के बारे में एक चीज प्रिंसिपल है कि नोटिस इशू तब माना जाएगा जब असेसिंग ऑफिसर के हाथ से निकल गया, उसने फाइल में साइन करके रख लिया, इज नॉट नोटिस इशूड। नोटिस इशूड तब होगा जब उसके रिसोर्स से निकल गया, पोस्टल अथॉरिटीज को दे दिया जैसे पहले देते थे। पुराने केसेस में ये हुआ है कि पोस्ट को कब दिया, अगर पोस्ट को 31/3 को दे दिया तो फिर भले ही वो सर्विस 10 अप्रैल को भी हुआ तो टाइमली सर्विस माना जाता था। अब आजकल तो सब ईमेल पर आ रहा है, तो ईमेल पर अब लॉ को समराइज किया है दाऊजी आभूषण भंडार ने। ये कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर रिसोर्स में चला गया, मतलब डिस्पैच के लिए चला गया, तब माना जाएगा, जिस समय उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया। तो अगर डिजिटल साइन का नोटिस 6 अप्रैल को मिला था इस केस में, तो कोर्ट ने कहा कि डिजिटली साइन में इतना समय तो लगता नहीं है, 31/3 को साइन किया, आपने जैसे ही बटन दबाया होगा वो रिसोर्स में चला जाना चाहिए था और ईमेल शूट हो जाना चाहिए था। हम देखते भी हैं रात को 12 बजे ईमेल आते हैं। अभी 31/3/22 को जो या पिछले साल जैसे स्क्रूटनी के नोटिस अभी आएंगे, जून में भी आएंगे, तो वो जनरली 30 जून को ही आते हैं, 10 बजे के आसपास आ जाते हैं नोटिस। तो ऐसा नहीं है कि आप साइन करके छोड़ गए और वो 2 दिन तक सिस्टम में आया ही नहीं नोटिस, वो तो आतों आती आता है। तो कोर्ट ने यही माना कि 6 अप्रैल को नहीं होना चाहिए। हाँ, 31/3 का नोटिस 1 अप्रैल को सुबह सर्व हो जाता तो भी हम टाइम पे मान लेते। ये दाऊजी मिष्ठान भंडार के केस में है, लेकिन इसका उल्टा भी जजमेंट आ गया। मालविका एंटरप्राइजेस जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, मद्रास हाईकोर्ट इस मैटर को किसी अलग ही दिशा में लेके चला गया। मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है कि एसएससी ये शो नहीं कर पा रहा कि ये नोटिस 31/3 को इशू नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता एसएससी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि वो बता पाए कि साहब 31/3 को इशू नहीं हुआ। वो तो यही बोलेगा कि साहब मेरे को ईमेल आया 6 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, तो इसका मतलब 31/3 को इशू नहीं हुआ। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें एक अलग ही जो है वो ग्राउंड लिया
the petitioner could not bring any fact on record to show that notice under section 148 was not issued by the electronic mode, that is by email, on 31st 2021, and that too when fact regarding digital signature of authority could not be disputed. तो इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट से पूरा जो है वो डाइवर्ट किया और कह दिया कि साहब जो है ये नोटिस वैलिड है क्योंकि 31/21 को इशू हो गया था। तो इसमें मुद्दा यही है कि एसएससी ने आर्ग्यू किया था कि मेल 1 अप्रैल को मिला, तो 1 अप्रैल को मेल सेंट हुआ, इसका मतलब इशू 1 अप्रैल को हुआ। तो लेकिन हाईकोर्ट मानी नहीं, हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आप प्रूव कीजिए कि ये 31 को इशू नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है, अभी 23 तारीख को हियरिंग में आएगा, 4777/2022। इन्होंने 6 कैटेगरी बनाई है, 5 कैटेगरी बनाई है नोटिसेस की, उस पर वो हियरिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये रिट लगी हुई है, जहां नोटिस डेट हो गया था 31 मार्च 21 को और बिफोर बट डिजिटली साइन हुआ 1 अप्रैल 21 को या उसके बाद। जहां नोटिस 31 मार्च 21 का डेट है, डिजिटली साइन ही नहीं हुआ और 1 अप्रैल 21 के बाद आया। जहां नोटिस 31 मार्च 21 और उसके पहले का है, डिजिटली भी साइन उसके पहले हो गया लेकिन रिसीव बाद में हुआ। जहां नोटिस 31 मार्च 21 और उसके पहले का है, डिजिटली भी साइन उसके पहले हो गया बट सर्विस ही नहीं हुआ, बाय ईमेल, बाय पोस्ट और एनी अदर मेथड। और जहां नोटिस 31 मार्च 21 और उसके पहले का है, मैनुअली साइंड है बट नो सर्विस बाय ईमेल और डिस्पैच थ्रू स्पीड पोस्ट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। तो 5 कैटेगरी बनाई है, अभी इसकी हियरिंग बाकी है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक रिट पेंडिंग है विभा बिश्नोई के केस में, जिसमें नोटिस पे ये बड़ा टिपिकल केस है, ये रिट हमने लगाई हुई है। इसमें क्या है कि 31 मार्च 21 की तो डेट है नोटिस पर और डिजिटली साइन नीचे जो आ रहा है वो 1 अप्रैल 21 11:34 सुबह का समय आ रहा है। और नोटिस के नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब डिजिटली साइन है तो जिस डेट को साइन डिजिटल साइन सिग्नेचर पर डेट आ रही है वो डेट नोटिस की डेट मानी जाएगी। और इस पर डेट लगी हुई है, अभी हाईकोर्ट इस पर हियरिंग कर रहा है, बार बार डेट मिल रही है, फाइनल फैसला नहीं आया है। एक चीज और, इशू वर्सेस सर्विस ऑफ नोटिस, ये एक बड़ा जोरदार मैटर है। गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 में तो वर्ड यूज किया है सर्विस, और 149 में वर्ड यूज किया है इशू। दोनों को गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली यूज कर रही है। ये सबको 25 किलो 26 149 में वर्ड यूज कर रहा है इशू और 148 में वर्ड यूज कर रहे हैं सर्विस। इशू और सर्विस में बहुत बड़ा फर्क है। इशू तो आपने 31 मार्च 22 को साइन कर दिया और वो इशू हो गया, और सर्विस तो हो सकता है 1 अप्रैल को हो, ईमेल 1 अप्रैल को मिले। ये बोथ दिस वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। हाई कोर्ट्स का इवन ओल्ड लॉ में ये सेक्शन 34 हुआ करता था 1922 एक्ट में, उसमें भी ये इशू बार बार आए थे और उस समय कोर्ट्स ने यही माना कि सर्विस ऑफ नोटिस एंड इशू बोथ आर इम्पोर्टेंट। कुछ केसेस में कोर्ट ये कह रही है सर्विस भी टाइम लिमिट के अंदर होनी चाहिए, कुछ केसेस में ये कह रही है कि इशू हो गया तो सर्विस चलो थोड़ी दिन बाद भी हो सकता है। ये भी मैटर चल रहा है, लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट है। ज्यूरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट को अपन थोड़ा समझ लें। ज्यूरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट अगर फेल हो जाती है तो फाउंडेशन फेल हो जाती है, आगे की सारी प्रोसेस फेल हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा टेक्निकल मैटर है जिसमें ये इस तरह का कोई आपका मैटर है तो आप इसको रिट में उठा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली नोटिस क्वैश हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट श्रीनाथ सुरेश चंद्र रमेश 280 ITR 396 में यही बोला है। एक चीज और है कि कई बार ये होता है कि हम लोग नोटिस के रिस्पॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं प्रोसीडिंग्स में, और बाद में रेवेन्यू सेक्शन 292 BB का हवाला लेके आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि जब आपने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे को नोटिस नहीं मिला या प्रॉपर सर्व नहीं हुआ या नोटिस डिफेक्टिव था। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण दास खंडेलवाल में कहा कि अगर नोटिस इशू ही नहीं हुआ या विद इन टाइम लिमिट इशू ही नहीं हुआ तो देयर इज नो, इट इज नॉट ए नोटिस एट ऑल। जब नोटिस ही नहीं है तो एसएससी ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, सेक्शन 292 BB रेवेन्यू के फेवर में नहीं आएगा। उस केस में फाउंडेशन ही इनवैलिड हो गया।
अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं आपके पास, कल एक क्वेरी भी थी जिसमें रिटर्न फाइल नहीं किया है आज तक या उस ईयर का, और फर्स्ट टाइम असेसमेंट कर रहे हैं। सन इंजीनियरिंग के केस में ये कोर्ट ने कहा था कि रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए होती है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, इसलिए आप नया क्लेम कोई नहीं कर सकते। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड में कहा कि जब मैं रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ, आज तक मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो आई कैन मेक ऑल सच क्लेम्स विच आर रिक्वायर्ड। और इसके पीछे जो इंटरप्रिटेशन है वो आता है आपका सेक्शन 148 में। आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि द SSC shall furnish a return is in response to notice under section 148 and such return shall all for the purposes of the act shall be treated as a return under section 139 of the income tax act। तो ये एक इसमें इस बेसिस पे इन्होंने कर्नाटका ने कहा कि फर्स्ट टाइम जब आप फाइल कर रहे हैं तो आपको सारे क्लेम मिलेंगे, क्योंकि आपने आज तक कोई क्लेम किया हुआ ही नहीं है। अब हम शुरू करते हैं ये नया और ओल्ड का पुराना। पुराने सेक्शन में और नए सेक्शन 147 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि पिछले सेक्शन में रीजन टू बिलीव एक वर्ड था, नए सेक्शन में रीजन टू बिलीव वर्ड को उड़ा दिया है। बाकी सारी वही चीज है, एंड असेस और रीअसेस सच इनकम। और एक चीज और इसमें हटा दी है, एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। इस लैंग्वेज को इन्होंने डाल दिया है अब एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 147 के एक्सप्लेनेशन में। बाकी मूलतः 147 करीब करीब सेम है। तो रीजन टू बिलीव अब कोई कंडीशन नहीं रही, एज्यूम टू जुरिसडिक्शन है रिप्लेस्ड बाय इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट। ट्विन कंडीशंस हैं, पहले देयर शैल बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स और दैट इनकम मस्ट हैव एस्केप्ड असेसमेंट। ये जुरिसडिक्शन टू रीओपन है, अपन अभी एक सेकंड में आगे पढ़ेंगे। प्रोसीजर इज एंटायरली सब्जेक्ट टू 148 टू 143। 140 टू 143 मशीनरी प्रोविजन से, जुरिसडिक्शन आपका 147 से आएगा। कोई भी रीअसेसमेंट में दो कंडीशन सेटिस्फाई पहले होनी पड़ेगी, इनकम चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए और एस्केपमेंट ऑफ सच इनकम होना चाहिए। और अगर कोई लॉस वगैरह डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा ले लिया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। कंडीशंस फॉर न्यू सेक्शन क्या है, देयर मस्ट बी एन एसएससी। पहले एसएससी वर्ड नहीं था, अब इन द केस ऑफ एन एसएससी वर्ड यूज कर लिया। एसएससी की डेफिनेशन आप जानते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी हुई है, जिसमें डीम्ड एसएससी भी शामिल होते हैं। डीम्ड एसएससी कौन कौन है? एक्ट में दो ही डीम्ड एसएससी हैं, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, जो सेक्शन 160 में एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट भी डीम्ड एसएससी है। सेकंड है देयर मस्ट बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स और दैट इनकम मस्ट हैव एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर। ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एनी असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? देन ओनली जुरिसडिक्शनल एओ कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, और अगर प्रोसीडिंग कर दिया तो 148 टू 143 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको असेसमेंट करना है। और देन द असेसिंग ऑफिसर में सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ वन सेक्शन 142 टू 153 असेस और रीअसेस सच इनकम और रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और सच एनी अदर अलाउंस। ये है अभी जो 147 का जो इन्होंने कर दिया है, ये एक अजीब सा इन्होंने किया है। इस पे आगे मेरे को लगता है काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इन्होंने ये कर दिया कि if any income is chargeable to tax in the case of an SSC has escaped assessment for any assessment year, the assessing officer may, subject to provisions of section 140 to 143, assess or reassess such income or recompute the loss, etc. Section 148 में इन्होंने जाके लिख दिया है कि no notice under this section shall be issued unless there is information with assessing officer which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वहाँ एक्सप्लेनेशन 1 और 2 से समझाया गया है। ये एक तरह से सेक्शन को अजीब सा तोड़ दिया गया है। अब इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड असेसमेंट तो जुरिसडिक्शनल कंडीशन हो गई, 148 में नोटिस इशू करने के लिए इंफॉर्मेशन इन पोजीशन हो गई। मेरे हिसाब से 147 में इंफॉर्मेशन इन पोजीशन होता तो ज्यादा बेहतर होता। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन 1 से आएगी, डीम्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन 2 से आएगी, अभी आगे डिटेल में आ जाएगा। मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूं इसलिए कि ये जुरिसडिक्शनल फैक्ट है। सेक्शन 147 की जो कंडीशन है, इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में जुरिसडिक्शनल फैक्ट कहते हैं। जब आप रीओपन करेंगे तो आपके पास दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, देयर मस्ट बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड दैट इनकम मस्ट हैव एस्केप्ड असेसमेंट। सेसा गोवा के केस में 294 ITR 101 में यही कहा गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इफ द बेसिक जुरिसडिक्शनल फैक्ट्स
for required for reopening of an assessment under section 147 do not exist, it would not be competent for the assessing officer to issue a notice under section 148. ये जुरिस्डिक्शनल कंडीशंस हैं, जुरिस्डिक्शनल फैक्ट इसको बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में, ये होना ही चाहिए। इसके बगैर आपका कोई नहीं हो सकता कि आपने 148 दे दिया फिर देख लेंगे कोई इनकम निकल रही है तो असेस कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एज्यूम करने से पहले, जुरिस्डिक्शन करने से पहले ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ये इन्होंने क्यों इसको सेक्शन को दो भागों में लिखा, 147 में क्यों नहीं लिख दिया, ये मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सजेस्ट? दिव्या, अभी रिसेंटली नए लॉ पर भी जजमेंट आ गया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्या कैपिटल के केस में 12 मई को कहा है, whether it is information to suggest under amended law or reason to believe under erstwhile law, the benchmark of escapement of income chargeable to tax still remains the primary condition to be satisfied before invoking powers under section 147. Merely because the revenue classifies a fact already on record as information may waste it with power to issue a notice of reassessment under section 148A, but would certainly not waste it with power to issue a reassessment notice under section 148. देखिए आप, नया लॉ भी एक्सप्लेन कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपन अभी डिस्कस करेंगे, बड़ा है, हिलारियस। इसमें असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है, सिर्फ 1 लाख करोड़ का नोटिस है, ज्यादा नहीं है। इसमें इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट आपने लिख दिया रीजन टू बिलीव की जगह, उससे कुछ नहीं होगा, जुरिस्डिक्शनल फैक्ट तो आपको लाना ही पड़ेगा, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपमेंट होना ही पड़ेगा। 148A आप कर सकते हो, 148 इशू करने से पहले आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये इनकम एस्केप हो रही है असेसमेंट से और ये चार्जेबल टू टैक्स है। स्क्रूटनी असेसमेंट में पहले ये था कि 143(3) और 147 में अगर हो गया तो 4 साल के बाद नहीं खुल सकता अनलेस कि एसएससी की तरफ से कोई गलती हो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करने में। ये कंसेप्ट पूरा गायब हो गया है। अब नए लॉ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका असेसमेंट 143(1) में हुआ, 33 में हुआ, 147 में हुआ। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है जो 5 पैरामीटर है या उनके पास डीम्ड इंफॉर्मेशन है सर्च और सर्वे से, तो वो रीओपन कर पाएंगे। अपील रिवीजन के केसेस में पुराने लॉ में एक प्रोविजो था कि द असेसिंग ऑफिसर मे असेस और रीअसेस सच इनकम अदर देन द इनकम इन्वॉल्विंग मैटर्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू मैटर्स ऑफ अपील व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स एंड एस्केप असेसमेंट। नए लॉ में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया इन्होंने। हुआ क्या था पिछले लॉ में, मेट्रो ऑटो कॉर्पोरेशन राजस्थान हाईकोर्ट का एक केस था, उसमें यह हुआ था कि मैटर जो है अपील में चल रहा था। तो अपील में जब मैटर चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर को कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, उसने रीओपनिंग का नोटिस दे दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा एक बार केस जो है अपील में चला गया उसके बाद आप रीओपन नहीं कर सकते, चाहे से उस पॉइंट पे अपील में नहीं, उस पॉइंट पे ओरिजिनल डिसीजन नहीं हुआ है जिस पॉइंट पे आप रीओपन करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके रिस्पेक्ट में तुरंत ही एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया था, थर्ड प्रोविजन सेक्शन 147 में, कि जो मैटर अपील में नहीं गया है, जिस मैटर पे ऑर्डर नहीं हुआ है, वो मैटर हम अभी भी खोल सकते हैं। नए लॉ में इसको लिखना ये भूल गए हैं। तो नए लॉ में अगर अपील का कोई केस आपके मान लो आगे चल के ऑर्डर होंगे और नए अपील में चैलेंज हो गया, उसके बाद अभी तो नोटिस नहीं दे पाएंगे, इस पुराने मेट्रो ऑटो कॉर्पोरेशन के जजमेंट के सहायता से अपन कंटेस्ट कर सकते हैं अगर ये होता है तो। फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर का पहले था प्रोडक्शन बिफोर असेसिंग ऑफिसर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं माना जाएगा। ये सारे कंसेप्ट हटा दिए हैं। एनी अदर इनकम का एक कंसेप्ट है, इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट था पहले कि कोई अदर इनकम उसके पास आई। मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा, 1 मिनट, तो ज्यादा अपने को समझ में आएगा। यहाँ पहले वर्ड था एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट व्हिच कम्स टू इट्स नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इस पर काफी डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन 3 डाला। एक्सप्लेनेशन 3 डाला कि फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर मे असेस और रीअसेस द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एन इशू व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड सच इशू कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स नॉटविथस्टैंडिंग के उस इनकम के लिए 148(2) का नोटिस दिया या नहीं दिया है।
कुल मिला के ये हो रहा था कि आपका रीअसेसमेंट चल रहा है, रीअसेसमेंट के दौरान पता लगा कि एक और मैटर पे आपने एस्केपिंग हो रहा है, तो उसके लिए फिर वो 148 का रीजन वगैरह की जरूरत नहीं थी, एक्सप्लेनेशन 3 से हो जाता था। लेकिन इस पर भी डिस्प्यूट हुआ और जेट एयरवेज के केस में, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज के केस में कोर्ट ने कहा कि जिस पॉइंट पर रीओपनिंग हुआ है उस पॉइंट पर एडिशन अगर होता है तो फिर नई इनकम पर एडिशन होगा, चाहे से आपने एक्सप्लेनेशन 3 सेक्शन में डाल दिया है। इस चीज से बचने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सप्लेनेशन डाल दिया और ये जो वर्ड्स हैं सेक्शन 147 से हटा दिए, एंड असेस एंड आल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अब क्या किया इन्होंने, ये वर्ड्स 147 से हटा दिए और एक्सप्लेनेशन 3 में डाल दिए। एक्चुअली इन वर्ड्स के आधार पर ही जेट एयरवेज में और रेनबैक्सी लेबोरेटरीज के केस में और राम सिंह के केस में सब में ये कोर्ट्स ने हेल्प किया था कि क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ हैं तो पहले यहाँ एडिशन होगा, जो आपने इशू खोला था उसके ऊपर होगा, फिर उस दूसरे पर भी हो सकता है, अगर यहाँ नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस चीज को लिटिगेशन से बचने के लिए इन्होंने सीधा एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि एनी अदर इशू जो नोटिस में आएगा एसएससी के ऑफिसर के, उस पर वो एडिशन कर सकता है और उसके लिए 148A का प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये डिफेंस तो अपना चला गया कि जिस पॉइंट पे नोटिस इशू हुआ है उस पॉइंट पे एडिशन होना चाहिए, ये डिफेंस अब आप नहीं ले सकते। अब वो एडिशन कर सकते हैं बगैर उस पॉइंट पे एडिशन किए जिस पॉइंट पे उन्होंने ओरिजिनली असेसमेंट खोला हुआ है। अब 148 का नोटिस इशू करने से पहले इन्होंने कुछ प्रोसीजर बता दिया है 148A में। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जीके एंड ड्राइव शेप्स का केस जो था कि एक बार नोटिस इशू कर दिया, फिर एसएससी आपसे रीजन मांगेगा, फिर आप रीजन देंगे, फिर उस रीजन को वो ऑब्जेक्ट करेगा, फिर उस ऑब्जेक्शन को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको रीओपनिंग को करेंगे। इसकी जगह नया 148A इस पूरे प्रोसीजर को इनकॉर्पोरेट करते हुए 148A डाल दिया। तो असेसिंग ऑफिसर सबसे पहले तो इंक्वायरी करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से या 135A में, जो भी अभी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, इनकम चार्जेबल टू टैक्स। तो ये इंक्वायरी डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। अगर वो करे तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी का। ये इंक्वायरी कैसी होगी, क्या एसएससी से इंक्वायरी करेंगे या समथिंग एल्स होगा? एसएससी से तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ भी रहे हैं। हाँ, बैंक से वेरिफिकेशन हो सकते हैं, शेयर मार्केट से हो सकते हैं, एसेसिंग ऑफिसर के अपने रिकॉर्ड से हो सकते हैं, कोई दूसरे एसेसिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड से हो सकते हैं, जीएसटी, सेबी, एमसीए, आरओसी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं, और 131, 133 कैपिटल ए बी सी का यूज करते हुए कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर असेसिंग ऑफिसर एक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे। ये इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे कि आप क्यों नहीं नोटिस इशू कर दिया जाए 148A कैपिटल स्मॉल बी के अंदर। इसके लिए जो है पहले अप्रूवल रिक्वायर्ड था, अब नहीं है। इसमें आपको कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का समय वो दे सकते हैं। उसके बाद आप रिप्लाई फाइल करेंगे, इस रिप्लाई को कंसीडर करना होगा और ये कंसीडरेशन कंस्ट्रक्टिव होगा। अभी हम देख रहे हैं 148A के अगेंस्ट जितने रिप्लाई जाते हैं, ज्यादातर केस में तो रिप्लाई कंसीडर्ड एक लाइन लिखते हैं या उस रिप्लाई को ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्डर में 148D के ऑर्डर में, और वो एज इट इज आपको वापस भेज देते हैं। ये रॉन्ग है। अभी कोर्ट ने भी कह दिया करना होगा रिप्लाई का, एसएससी क्या ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्या डिटेल वो बता रहा है, उसको पूरे को डिस्पोज ऑफ करना होगा और उसके बाद आप एक डिसीजन लेंगे कि इसमें जो है केस बनता है या नहीं बनता है। सर्च केसेस में और 135A से जो इंक्वायरी के केसेस हैं उसमें ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, सर्वे केस में होगा। अप्रूवल्स कितने लेने पड़ेंगे? इंक्वायरी करने के लिए अप्रूवल लेंगे, फिर 148A अब नहीं लेंगे, पहले लेना था 31/22 के बाद नहीं लेंगे। 148D का ऑर्डर पास करेंगे, AD का, वो तब फिर अप्रूवल लेंगे। फिर 148 का नोटिस इशू करने से पहले अप्रूवल लेंगे। अगर 148AD का ऑर्डर पास नहीं करते तो, अगर 148D का ऑर्डर पास हो गया तो फिर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। और सर्च केसेस में, सर्च केसेस में और 135A के केसेस में ये अप्रूवल हमेशा ली जाएगी।
ये जो शो कॉज नोटिस देंगे, इसकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए क्या फुलफिल? बिल्कुल होनी चाहिए। कोर्ट्स ने कहा पहले क्या अपने लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में इस तरह की शो कॉज नोटिस की परंपरा नहीं रही, लेकिन दूसरे लॉज में रही है। तो इसमें शो कॉज नोटिस देते समय उसको आपको सारा मटेरियल देना चाहिए जो भी उनके पास है, जिस मटेरियल पे वो रिलाई कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो प्राइमा फेसी ओपिनियन वो बना रहे हैं। 148A के जो 148AB में जो आपको नोटिस आए उसमें सारी चीज होनी चाहिए। प्राइमा फेसी व्यू क्या बना रहे हैं, ये आपका ये तो इनकम टैक्स का ही केस है, लॉ लैंड प्रोमोटर्स का, और एक गोरखा सिक्योरिटीज का सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये दूसरे लॉ में है, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा है कि मटेरियल और ग्राउंड्स टू बी स्टेटेड ऑन विच अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब किस मटेरियल पे, किस ग्राउंड्स पे, और पर्टिकुलरली द पेनल्टी एक्शन विच इज प्रपोज टू बी टेकन। मतलब सारा मटेरियल जो उनके पास है वो उनको आपको सप्लाई करना चाहिए, उसके मटेरियल के आधार पर उनकी क्या ओपिनियन है वो उनको देनी चाहिए, और फिर आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप अपना पक्ष बताएं, क्योंकि इसको बोलते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग। तो इसमें सारी चीज आपके सामने होनी चाहिए कि अथॉरिटी के पास मटेरियल क्या है और उस मटेरियल से वो क्या निकाल रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई मटेरियल हो जिससे वो कुछ निकाल रहे हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन हकीकत में वो हमारे केस में लागू ही नहीं हो रही। इसको अपन एक सेकंड कर लेंगे। अब इसी पर मैं कुछ कोर्ट के व्यूज जो आ गए हैं वो ले लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी जजमेंट आया है, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज 15 फरवरी 2022। इसमें इन्होंने पूरा प्रोसीजर ही लिख दिया कि आपको क्या करना है। While communicating the reasons for reopening the assessment, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वेस्ट जो असेसिंग ऑफिसर भेजेगा अपने सीनियर को अप्रूवल के लिए, वो पूरा आप दे दीजिए। उसमें आपने क्या क्या भेजा है वो सारे डिटेल एसएससी को दे दीजिए। फिर आप कोई रिपोर्ट, कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट को बेस बना रहे हैं तो वो भी एसएससी को दे दीजिए, और जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है वो आप हटा सकते हैं। ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस जो अपन रिप्लाई देंगे, फिर उसके बाद जो 148A(d) में ऑर्डर आएगा वो आपका पॉइंट वाइज ऑब्जेक्शंस को आप डिस्पोज ऑफ कीजिए कि इस पॉइंट पे आपका गलत है, इस पॉइंट पे गलत है। पर्सनल हियरिंग देनी चाहिए, 7 दिन का कम से कम टाइम देंगे, और कोई जजमेंट पे रिलाई करने जा रहा है तो असेसिंग ऑफिसर तो वो भी उसको बताना है। ये टाटा कैपिटल का फाइनेंशियल सर्विसेज का केस है, ये नए लॉ में ही डिसाइड हुआ है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जो जोरदार केस है, इसको अपन समझेंगे तो 148A भी समझ में आ जाएगा पूरा। दिव्या कैपिटल वन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट, 12 मई 2022 का। इसमें 1 लाख करोड़ प्लस का एलिगेशन लगाया। एलिगेशंस क्या है आप देखिए कि एसएससी ने सेल परचेज ऑफ शेयर्स किया है, फ्यूचर्स ऑप्शंस किए। हाई कोर्ट कहता है इसमें गलत क्या किया है, इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, और ये सारे ट्रांजैक्शन जब P&L में आ गए हैं तो एस्केपमेंट कहाँ हुआ, रिटर्न में भी उसने शो किया है। दूसरा, परचेज मेड बाय पिटिशनर, इसमें उसी के जीएसटी रिटर्न से परचेजेस की डिटेल निकाल के और उसके ऊपर उनको जोड़ दिया कि ये आपका एस्केपमेंट है। हाई कोर्ट ने कहा भाई ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और P&L में आए हुए हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल को सैलरी दिया, प्रोफेशनल्स को पेमेंट किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया और सैलरी पेमेंट्स किया, उन पर टीडीएस काटा है। उसी के टीडीएस रिटर्न से वो सारी डिटेल निकाल के ऐड करके वहां पे लिख दी कि इतना अमाउंट आपने ये पेमेंट किया है। तो हाई कोर्ट ने कहा इसमें क्या किया है, तो आपने उसके टीडीएस रिटर्न से निकाल के उसी को बता रहे हो और उसमें आप उसको एस्केपमेंट मान रहे हो। सैलरी एस्केपमेंट कैसे हो गया जब तक कि डमी को ना दिया हो, कोई आदमी प्रोफेशनल ने सर्विस ही ना दिया हो, ऐसा आपने प्रूव कहीं नहीं किया। चौथा, फिक्टिशियस परचेज आपने किया हुआ है किसी पार्टी से। कोर्ट ने कहा नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू इंडिकेट द बेसिस फॉर सच एलिगेशन, द ऑब्जर्वेशंस आर विदाउट एनी बेसिस व्हाटसोएवर, इट इज वेहेमेंटली डिनाइड दैट नो ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट विद द सेड एंटिटी, एसएससी ने अपने पिटीशन में लिखा। तो ये अपन पढ़ चुके हैं जो अपन ने, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट रीजन टू बिलीव, दोनों एक ही चीज होगी। इंफॉर्मेशन, कोर्ट का फाइनल फैसला मैं बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन पुल्ड आउट फ्रॉम पेटिशनर्स ओन रिकॉर्ड्स, फॉर्म 10DB, जीएसटी रिटर्न 26AS have been used to issue notice without mentioning what is wrong, what are the apprehension of the assessing officer and what are the points on which clarifications are required। 148A का नोटिस देते समय भाई
26 AS में या TDS रिटर्न से आपने निकाल लिया, तो उसमें गलत क्या है ये आपको एलिज करना पड़ेगा ना कि इसमें ये गलत है, ये प्रोफेशनल को जो पेमेंट है ये गलत किया हुआ है आपने, किया ही नहीं है, ये कुछ बताओगे तो सही है। इट इज नॉट अंडरस्टूड as to how expenditure incurred by petitioner on salaries, payment of professional fees and purchases can amount to income having escaped assessment without there being any allegation that the employees professionals to whom salaries and fees has been paid are dummies, fictitious है। फर्दर इंफॉर्मेशन मटेरियल जो आपके पास था वो आपने शेयर नहीं किया। The non-sharing of information is violation of old judgment of sub infrastructure 398 ITR 198। चौथा चीज जो अपन ने अभी पढ़ा था कि सेक्शन 148C by using the expression shall to consider the reply of the SSC in response to notice before making order of the act has mandated an objective consideration of reply। आपको रिप्लाई का ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको पूरा प्रॉपरली देखना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसको नोटिस को कैश कर दिया। कोर्ट ने यह भी बोला कि in majority of reassessment cases post 1st April 2021 the orders under section 148A(d) of the act use a template general reason to reject the defense of the SSC on merits, namely found devoid of any merit because the SSC company has failed to produce relevant documents in respect of transactions mentioned in the super's notice. It is established that the SSC has no proper explanation। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप नहीं कर सकते और ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये तो एक बस आपको नोटिस देना ही है और खोलना ही है असेसमेंट को, वो वाली बात हो गई। तो सारे नोटिस को क्वैश कर दिया। सिमिलरली फेना प्राइवेट लिमिटेड में फिर अगेन वही आया कि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रिप्लाई कंसीडर नहीं किया, तो उन्होंने पूरे नोटिस को क्वैश कर दिया और वापस रेलीगेट कर दिया। आज जो है पूजा वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट ये आया है। इसमें कह रहे उन्होंने 7 दिन का जो नोटिस दिया था उसको भी कम माना है और उसको बोला है कि आप नोटिस थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये 148A पे ये कोर्ट के व्यूज चल रहे हैं। अब अपन इसको पढ़ लेते एक बार। तो मान लीजिए 148A का नोटिस आया और एसएससी ने रिवाइज्ड कंप्यूटेशन कर दिया और टैक्स भर दिया, तो क्या होगा? मेरे हिसाब से रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन 148 का नोटिस आने पर ही खुलेगा, तो रिटर्न तो भरना पड़ेगा, उसमें टैक्स आप दिखा देंगे, उसके बाद पेनल्टी का इशू आएगा। अगर असेसमेंट ईयर 17-18 या उसके बाद का है तो 270 कैपिटल ए में क्लियर कट प्रोवाइडेड है कि पेनल्टी लगेगी। और पिछले जो लॉ में अगर पुराने नोटिस हैं तो उसमें 271(1)(c) में कुछ डिस्प्यूट है, 270A में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि पेनल्टी लगेगी। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो है वो 31/3/22 तक तो इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन द केस ऑफ द एसएससी थी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब फ्लैग वर्ड हटा दिया है और एक वो सीएजी की ऑडिट का था। अब जो है वो ये हो गया है कि एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑडिट ऑब्जेक्शन अब सारे कवर हो गए, इंटरनल ऑडिट, सीएजी ऑडिट और भी कोई ऑडिट। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 1990 कैपिटल ए में। एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135 कैपिटल ए। ये स्कीम नोटिफाई हो गई है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कोई कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल से कोई इंफॉर्मेशन आएगी। तो अब ये हो गया कि कोई भी नोटिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल विद द असेसिंग ऑफिसर के आधार पर इशू नहीं होगा। अब असेसिंग ऑफिसर को सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसी के आधार पर वो कर सकेंगे। 148A एप्लीकेबल नहीं होगा सर्च केसेस में, 135A के केसेस में। इंक्वायरी अपन डिस्कस कर चुके हैं, नॉट कंपलसरी, इट इज डिस्क्रिशनरी। सर्वे केसेस में इंफॉर्मेशन डीम्ड है लेकिन 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए सर्वे हुआ, मटेरियल इंपाउंड हुआ, वेदर इंफॉर्मेशन होगी क्या? ये नहीं, मटेरियल इंपाउंडेड इज नॉट इंफॉर्मेशन स्ट्रेट वे, सच मटेरियल पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर उसको खोलने के लिए काम करना पड़ेगा। एक कोर्ट के भी हमने डिस्कस कर लिए 148A पर। इंफॉर्मेशन एज बेसिस हमने कर लिया है। और ये इंफॉर्मेशन जो फ्लैग वाला जो था उस समय दिसंबर 10, 2021 में एक सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन आया था 225/135/2021।
उसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, information arising out of internal audit objection, information received from any income tax authority including the assessing officer himself or herself, information arising out of search or survey action, information arising out of FT and TR references, information arising out of any order of court, appellate order, order of NCLT or order under section 263, 264 having impact on income of the assessee, or cases involving addition in assessment on a recurring issue of law or fact. ये इस तरह के इन्होंने इंफॉर्मेशन को फ्लैग इंफॉर्मेशन माना था और असेसिंग ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सिस्टम में फ्लैग कीजिए। तो ये आगे चल के भी मुझे लगता है इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास उनके पास आएंगी। सेक्शन 135 ए में एक स्कीम इन्होंने नोटिफाई की है, नोटिफिकेशन 137/2021, 13/12/21 का है ये नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर में इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं 133 की पावर में, इंफॉर्मेशन 133B में जो बैंक वगैरह से कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो 133C में ये लोग कलेक्ट करते हैं जो आपके ADIT DDIT वगैरह करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन जो 134 में कंपनीज का रजिस्टर वगैरह के लिए करते हैं, और पावर अंडर सेक्शन 135 जो असेसिंग ऑफिसर के पास है। ये इस स्कीम के तहत जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अब आपकी डीम्ड इंफॉर्मेशन होगी और उसके आधार पर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसमेंट खोला जा सकेगा और उसके लिए 148A का प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। अब एक कंसेप्ट है डीम्ड इंफॉर्मेशन का, जहां सर्च हुई है 2021 के बाद, जहां सर्वे हुआ है 1 अप्रैल 2021 के बाद, जहां असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, जो एक सर्च हुई उसमें कुछ पन्ने दूसरे आदमी के मिले तो उससे रिलेटेड कोई मटेरियल एसेट ज्वेलरी मिली या बुक्स मिली, उसके आधार पर तो असेसिंग ऑफिसर को डीम्ड टू बी हैव इंफॉर्मेशन दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसमें बड़ा मजेदार है कि पहले जो है इन्होंने लिखा था फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच सर्च और सर्वेज अंडरटेकन। पहले इंफॉर्मेशन 3 साल के लिए थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1/4/21 से अमेंडमेंट करके ये इंफॉर्मेशन अब 10 साल के लिए एक साथ है। हाँ, नोटिस इश्यू करते समय 3 साल और 7 साल वाली जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग, जो 50 लाख वाली वो लगेंगी, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन 10 साल के लिए डीमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले ये था कि 3 साल तक डीम था, उसके बाद हर साल 50 लाख का वो होना था, अब वो हटा दिया इन्होंने। सर्विस ऑफ नोटिस, अब 148A कंप्लीट हो गया, अब आपको नोटिस दिया जाएगा। सच नोटिस के पास नोटिस के साथ में 148AD का ऑर्डर आएगा, फिर इसके अंदर आपको रिटर्न भरना है और ये रिटर्न का जो अगर आप भर देंगे तो ये प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 शैल अप्लाई और अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर 148D का ऑर्डर आया है। तो अगर 148D का ऑर्डर नहीं आया, जो सर्च केसेस में नहीं आएगा और 135A के केसेस में नहीं आएगा, तो उसमें फिर अप्रूवल भी होना पड़ेगा। क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है 148 के नोटिस के अगेंस्ट? ये एक केस हुआ था अडोबे सिस्टम्स का, उसमें कंपनी ने कहा कि अगर हम रिटर्न फाइल कर देंगे तो वी आर सबमिटिंग टू द जुरिसडिक्शन, हम तो रीओपनिंग को चैलेंज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, रिटर्न फाइल करने से आप सबमिटिंग टू जुरिसडिक्शन नहीं होंगे, तो आप रिटर्न तो फाइल करें, बाद में आप रिट में चैलेंज करें 148 के प्रोसीजर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, 148 का नोटिस है, रिटर्न फाइल करते ही नहीं है एसएससी, तो उस केस में क्या होगा, एक तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। कुछ लीजिंग के एक केस में इसको चैलेंज किया था कि 148 के नोटिस में मैंने रिटर्न ही नहीं भरा तो 148(4) नहीं कर सकते, तो उसमें तो ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, और उसके बाद ऑप्शन भी नहीं है कुछ, अगर आप रिटर्न ही नहीं भरोगे तो असेसिंग ऑफिसर 144 नहीं करेगा। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको अराइज हो सकती हैं, अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा, अगर तो 276 CC लगा देंगे, इंटरेस्ट आपका डेट ऑफ ऑर्डर तक लगेगा, अगर आप रिटर्न भर देंगे तो जिस डेट तक है वहीं तक 234 लगेगा। एक और इश्यू चला था बीच में कि अगर 148 में 30 दिन का टाइम लिमिट देते हैं, उसमें हमने रिटर्न नहीं भरा तो क्या आफ्टर वाला रिटर्न एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? बेंगलोर ट्रिब्यूनल ने कहा H गौतम चंद में कि यस, ये रिटर्न तो एक्सेप्टेबल है, लेट भर सकते हैं। एक इशू जो बरसों से चल रहा है कि 148 आ गया, उसके बाद 143(2) का नोटिस देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये 148 का रिटर्न भी 139 का रिटर्न बन जाता है। 139 के रिटर्न को खोलने के लिए
आपको 143(2), 142(1) का प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए 143(2) तो आपको देना ही पड़ेगा नोटिस। अगर नहीं देते हैं तो इस बेसिस पे अपन चैलेंज कर सकते हैं और आप केस जीत जाएंगे, रीअसेसमेंट क्वैश हो जाएगा। ये कुछ फैसले हैं इसके, नेशनल थर्मल पावर, आसाम कंपनी, सब में ये हुआ, बहुत सारे आपको जजमेंट मिल जाएंगे इसमें। सर्विस ऑफ नोटिस में 282, 282 कैपिटल ए, 292 डबल बी, 127 और 127 ए रूल। सर्विस ऑफ नोटिस 282 के हिसाब से पोस्ट से हो सकता है, सिविल प्रोसीजर के हिसाब से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज पर आईटी एक्ट हो सकता है, या बाय एनी अदर मोड हो सकता है। अब चूंकि ईमेल से ही होता है तो हम रूल में 127 पढ़ लेते हैं। ईमेल एड्रेस अवेलेबल इन द इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश्ड बाय द एड्रेसी टू विच कम्युनिकेशन रिलेट्स। कई बार आप देख रहे होंगे कि नोटिस आपको आ रहा है उस ईमेल एड्रेस पे जो रिटर्न में गया था। ईमेल एड्रेस लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ले सकते हैं, और ईमेल एड्रेस आपने जो अवेलेबल कराया है डिपार्टमेंट को उस पर। ऑथेंटिकेशन में तो ऑथेंटिकेट ही होता है, चलो इलेक्ट्रॉनिक मेड ऑथेंटिकेशन में ज्यादा इशू नहीं आता है। 292 भी एक जो है कि इसमें आप अगर एक बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया प्रोसीडिंग्स में तो फिर आप सर्विस के आधार पर, डिलेड सर्विस के आधार पर, इम्प्रॉपर मैनर के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मण दास खंडेलवाल में नॉन सर्विस ऑफ नोटिस और इनवैलिड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस इज नॉट क्यूरेबल बाय 292 बी। इसी तरह से नोटिस नॉट इशूड विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन नॉट क्यूर्ड बाय 292 बी, चेरियन अब्राहम के केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है। इसका केस मुझसे मिस हो गया। इसमें ये एक इशू है कि केवल मेल पर नोटिस आते रहे और मेल कोई पुराना आपके किसी कंसल्टेंट का पड़ा हुआ था, ऐसा बहुत केसेस हुए, और फिर बाद में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होकर के आ गया। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई मेल पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है और आप उसको मेल पर ही नोटिस दिए जाओगे, ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ, तो आप उसको फिजिकल नोटिस एक बार भेजना चाहिए था आपको, ताकि वो अपना केस प्रेजेंट करता आपके सामने। इसका केस मुझे अभी नहीं मिला, मैंने पहले कहीं से ले लिया था, मैटर बना लिया था, मुझे केस ओमिट हो गया है, कभी बाद में बता देंगे। सर्विस ऑफ नोटिस ओनली ऑन मेल आईडी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आप जब ईमेल आईडी पर आ रहा है तो सेक्शन 13 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हम लोग ध्यान से समझ लें। इसमें लिखा हुआ है, बाकी तो चीजें अपने काम की नहीं होती। If the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not designated computer resource, receipt occurs at a time when the electronic record is retrieved by the SSE. ऐसा कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स है जो आपका डेजिग्नेटेड नहीं माना जाता है? जैसे मैंने manojgupta.com वेबसाइट बना रखी है और उसमें मैंने ईमेल दे रखा है admin@manojgupta.com। तो उस केस में तो जैसे ही सिस्टम में मेल आ गया वो सर्व हो गया, क्योंकि वो मेरा डेजिग्नेटेड सिस्टम है। लेकिन जो हमारा जनरल जीमेल पर होता है या रिडिफ मेल पर होता है, उस केस में जब मैं रिट्रीव तब होगा जब मैं उसको खोलूंगा। ये अपीलों में बहुत काम आएगा कि कई बार क्या होता है कि लेट हो जाते हैं, तो भाई मैंने जिस दिन मेल देखा उस दिन से 30 दिन इसको यूज आप कर सकते हैं। जो प्रपोजिशंस अभी भी चलेंगे, नेचुरल जस्टिस, जुरिसडिक्शन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, लेकिन अब फेसलेस में तो खत्म हो गया है सारी चीज। रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग की इनकम चार्जेबल टू टैक्स है और ये एस्केप्ड असेसमेंट हो गया है। अप्रूवल पे बहुत इश्यूज होते हैं, हालांकि अब सिंपल कर दिया है, 3 साल तक प्रिंसिपल सीएटी और सीएटी, और 3 साल से ऊपर प्रिंसिपल चीफ सीएटी और चीफ सीएटी। तो अब सिंपल कर दिया है, इसलिए चक्कर नहीं आएगा। लेकिन अगर अप्रूवल प्रॉपर नहीं है, मान लो कोई असेसिंग ऑफिसर ने जॉइंट सीएटी से अप्रूवल ले लिया, तो इस बेसिस पे असेसमेंट ही क्रैश हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप आरटी डिपार्टमेंट से मांगे कि आपने किससे अप्रूवल लिया है और क्या उसमें है। ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम चार्जेबल टू टैक्स किसको मानेंगे? नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली अलाउबल एंड
where an expenditure is not property is allowed, that net income accessible is protected. ये कमलापत मोतीलाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था. Income chargeable to tax, exempt income. Exempt income never enter into computation, not chargeable to tax. Asia Satellite 85 ITD 478, TEI Technologies 361 ITR 36, शिखा संजय शर्मा 2022 का केस है. एग्जाम्प्ट इनकम कंप्यूटेशन में ही नहीं आती है तो चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं, तो इस पर नोटिस नहीं आ सकता है. अभी एक केस है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पर नोटिस दे दिया उन्होंने, और वो एग्रीकल्चर इनकम में सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. आपके पास गिरदावरी रिपोर्ट है, आप प्रूव कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम है. तो हमने उनको यही कहा कि आप 148A के रिप्लाई में दे दीजिए कि हमारे एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर हो ही नहीं सकता है. लेकिन हालांकि उन्होंने फिर भी 148 दे दिया, तो आगे चैलेंज हो जाएगा, अपील में जीत जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, तो उसके आधार पे आप कोई नोटिस नहीं दे सकते अनलेस कि वो ये एलिगेट करें कि एग्रीकल्चर इनकम सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और ये आपका बिजनेस इनकम है जिसको आप एग्रीकल्चर इनकम की कलर दे रहे हैं. अगर ऐसा वो करें तो अलग बात है. कैपिटल रिसिप्ट कोई हो तो वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है. कैश डिपॉजिट्स पे दिल्ली ट्रिब्यूनल का बीर बहादुर सिंह का केस है जिसमें उन्होंने कहा कि कैश डिपॉजिट इज नॉट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अनलेस द असेसिंग ऑफिसर ब्रिंग सम मटेरियल कि ये आपकी इनकम है, लेकिन अब असेट्स में कवर हो सकती है. जैसे 56 में जो गिफ्ट है एग्जेम्प्ट है, वो भी नहीं है. कुछ सिचुएशंस में क्या 147 इन्वोक हो सकता है. आईटीआर फाइल नहीं किया, लेकिन इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा थी. इस केस में 147 इशू हो सकता है क्योंकि 148 रीअसेसमेंट हो सकता है क्योंकि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैस्केप्ड असेसमेंट है. लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से या तो आए या सर्च सीजर सर्वे से निकले. एक्सेसिव लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस और डिडक्शन कोई क्लेम कर लिया आपने, 3 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस होना चाहिए जो रिवील करे कि इस वजह से इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड असेसमेंट हुई है और अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए. अंडर असेसमेंट और अंडर डिक्लेरेशन, मान लीजिए स्क्रूटनी असेसमेंट में अंडर असेसमेंट हो गया या अपन ने कम इनकम डिक्लेयर करी, तो वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से आएगा या वो 4-5 पैरामीटर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो होगा. ऑडिट ऑब्जेक्शन, पहले बहुत प्रॉब्लम थी, ऑडिट ऑब्जेक्शन पे रीओपनिंग नहीं हो सकता, इस तरह के बहुत फैसले हुए थे, अब एक्सप्लेनेशन 1 से कवर हो गई. मिस्टेक्स इन स्क्रूटनी असेसमेंट, कोई रीओपन का नहीं है, आ रहा है एमएस में आ जाए या फिर आप रिवीजन में जाइए. असेसमेंट एट लोअर रेट, वही चीज है. टीपी रिपोर्ट पहले था कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट नहीं करेंगे तो रीओपनिंग हो जाएगा, अब नहीं है. एसेट्स आउट ऑफ इंडिया में भी वही चीज है. चेंज ऑफ ओपिनियन अभी भी कंसेप्ट रिलीवेंट है. अगर आपका स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ है तो अभी भी आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने सारे मैटर रख दिए थे असेसिंग ऑफिसर के सामने, अब उससे वो चेंज करके नया उसी चीज को दोबारा देखना चाहता है, तो अभी भी आप कर सकते हैं. कैश डिपॉजिट, बीर बहादुर सिंह सिजवाली का जो केस है, इसमें इन्होंने ये माना था कि कैश डिपॉजिट इटसेल्फ इज नॉट इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो इसके लिए रीओपनिंग नहीं हो सकता है अनलेस कि असेसिंग ऑफिसर कोई मटेरियल ऐसा लेके आए जो शो करे कि ये इनकम का पोर्शन है. इसी तरह से सनराइज एजुकेशन ट्रस्ट में भी यही हुआ था कि एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया था, कैश डिपॉजिट के आधार पर नहीं आप कर सकते रीओपनिंग. ये कोर्ट का ट्रिब्यूनल का फैसला है. टाइम लिमिट्स देख लेते हैं. 3 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू विच इनकम रिलेट्स, कब खोल सकते हैं. द असेसिंग ऑफिसर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन द केस ऑफ द एसएससी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड द एसएससी ऑफिसर हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द स्पेशल अथॉरिटी. कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई कितना भी इनकम कितना भी अमाउंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. 3 साल तक तो कभी भी खोल सकते हैं. 3 साल के बाद 10 साल तक असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट, और उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होनी चाहिए जिससे रिवील हो कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और अमाउंट जो है 50 लाख और मोर होना चाहिए 31/3/22 तक फॉर दैट ईयर की कंडीशन थी.
मतलब हर साल 50 लाख से ज्यादा, मान लीजिए 4th ईयर में 50 लाख से ज्यादा है तो खुल जाएगा, 5th ईयर में नहीं है तो 5th ईयर नहीं खुलेगा, 6th ईयर में फिर 50 लाख से ज्यादा है तो खुल जाएगा। ये कंडीशन 31/3/22 तक थी। नाउ उन्होंने क्लेवरली इस कंडीशन को हटा दिया और इस स्कोप को भी बढ़ा दिया। अब ये कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर हैज इन पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस व्हिच रिवील दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट, expenditure in respect of a transaction or in relation to an event or occasion। अभी एक क्वेरी थी कि साहब मैंने शादी कर दी और शादी में मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खर्चा मार्च में कर दिया, कुछ अप्रैल में कर दिया, तो या शादी में मान लो 50 लाख से 40 लाख मार्च में कर दिया, 40 लाख अप्रैल में कर दिया, 80 लाख हो गया, तो क्या होगा? तो पहले नहीं था 31/3/22 तक कवर, अब ये कवर हो गया इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेजन में वो कर लेंगे, और 50 लाख की कंडीशन पर ईयर वाली हटा दी है, तो आपका ये ओपनिंग हो सकता है। और एनी एंट्री और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत वाइड है, कोई आपने लोन लिया हुआ है उसके आधार पर भी खुल सकता है, कोई लाइबिलिटी साइड की एंट्री के आधार पर भी आपका रीओपनिंग खुल सकता है, ये सारी चीजें। और 50 लाख और मोर करके छोड़ दिया है, फॉर दैट ईयर हटा दिया है क्लेवरली, तो फॉर दैट ईयर की कंडीशन खत्म कर दी है। असेट का मतलब क्या? इमोल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर, सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट। इमोल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिफाइंड टू इंक्लूड लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सेक्शन 50C जिन लोगों का काम पड़ा होगा उन्होंने देखा होगा, वहां पे बहुत सारे जजमेंट हुए, यासीन मूसा गाडगिल और अतुल का एक जजमेंट है जिसमें ये हुआ कि लीज राइट्स पर सेक्शन 50C नहीं लगता है, इसी तरह से डेवलपमेंट राइट्स पर नहीं लगता है, इसी तरह से और भी जो भी राइट्स लैंड में होते हैं उस पर नहीं लगता है। तो वो सारे के सारे जजमेंट्स यहाँ आप इंपोर्ट कर सकते हैं कि असेट का मतलब, चूंकि इन्होंने लिख दिया बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो अगर कोई लीज राइट्स है तो वो आपके कवर नहीं होंगे, अगर कोई लीज और राइट्स हैं, अगर कोई डेवलपमेंट राइट्स है तो वो कवर नहीं होंगे। बट ऑल मूवेबल एसेट्स आर कवर्ड, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी, ये सारे कवर होंगे। और एसेट का मतलब कोई एक सिंगल एसेट नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ एसेट भी हो सकता है। मान लीजिए आपने लैंड, म्यूचुअल फंड, शेयर, ज्वेलरी सबको मिला के 50 लाख से ज्यादा का आपने कर लिया तो वो भी हो जाए, आपके कवर हो जाए। एक सेक्शन 149 सबसेक्शन 1A फाइनेंस एक्ट 2020 से ही आया था। इनकम इन चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट और एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन इवेंट और ओकेजन जहां वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा हो और ये डिफरेंट ईयर्स में हुआ हो। जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे 40 लाख एक साल हो गया, 40 लाख दूसरे साल हो गया, तो डिफरेंट में हो गया, लेकिन 50 लाख से ज्यादा हो गया तो सेपरेट नोटिस देके उसको हर ईयर का कवर कर लेंगे। अप्रूवल 3 साल तक प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी से, और 3 साल से ऊपर प्रिंसिपल चीफ सीआईटी, और अगर वो नहीं है तो चीफ सीआईटी से, 2 तरह का अप्रूवल कर दिया है। ये बड़ा प्रोविजो इंपॉर्टेंट है कि अगर पिछले लॉ में नोटिस इशू नहीं हो सकता था तो इस लॉ में भी नहीं होगा। ये प्रोविजो ये है कि अगर ओल्ड लॉ में एज ऑन डेट ऑफ नोटिस, इसके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1 अप्रैल 21 को देखा जाएगा कि पिछले लॉ में नोटिस नहीं हो सकता था, वो सारे नोटिस टाइम बार हो गए, लेकिन 1 अप्रैल 21 को अगर इशू हो सकते थे तो वो हो सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जब भी नोटिस इशू करेंगे असेसमेंट 2020-21 तक वाले केसेस में, उन सब में पुरानी और नई दोनों देखेंगे। आज अगर नोटिस इशू कर रहे हैं तो आज की डेट में देखेंगे कि क्या पुराने लॉ में नोटिस दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। अगर नहीं दे सकते थे तो नए लॉ में भी नहीं दे पाएंगे। सर सर्वे के केसेस अपन डिस्कस कर चुके हैं कि डीम टू बी इंफॉर्मेशन होगा और उसके आधार पे वो उसको खोल सकते हैं। सर सर्वे के केसेस में रीअसेसमेंट ऑर्डर जो है वो जीसीआईटी विद प्रायर अप्रूवल एडिशनल सीआईटी और डायरेक्टर के उससे करेंगे। थर्ड पार्टी के केसेस में सर्च हुआ एक्स के केसेस में और वाई के रिलेटेड ज्वेलरी मिल गया या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल गई, तो जो असेसिंग ऑफिसर अब जो है, पहले क्या था 153C, जो लोग फेमिलियर हैं कि पहले 153A में जो सर्च का पर्सन का असेसिंग ऑफिसर होता था वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करता था कि ये ज्वेलरी, ये एसेट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंग करते हैं वाई को।
और फिर वो वाई के असेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर करता था, फिर वाई का असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट करता था। अब सिंपल कर दिया है कि असेसिंग ऑफिसर का जो सेटिस्फेक्शन है वो एसएससी जो है पर्सन अदर देन सर्च वही सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर लेगा कि वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग जो उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, और प्रिंसिपल सीएटी और सीएटी की अप्रूवल या एडिशनल अप्रूवल है अदर देन नोटिस की अप्रूवल से, इन अप्रूवल से वो असेसमेंट को एक बार को खोल देगा। सपोज सर्च हुई है ऐसे ए के ऊपर 27/3/22 को 40 लाख की एसेट ऐसी मिलती हैं जो बी को मिली है, बी की है, और उनके असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर करती 25/3/2023 को। ए ऑफ द एसएससी एंड नॉट ए ऑफ सर्च पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन, सर्च पर्सन से नहीं होगा। और ए ऑफ एसएससी टू अराइव एट सैटिस्फैक्शन दैट सच एसेट्स बिलोंग टू एसएससी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम प्रिंसिपल सीएटी और सीएटी से सेक्शन 148 का प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। नोटिस फॉर असेसमेंट 2019-20 कैन बी इशूड ओनली अप टू 31/3/2023 एल्स सेम शैल बी टाइम बार्ड। क्योंकि आपको 25/3/23 को इन्फॉर्मेशन मिली, डीम हो गया, उसी दिन आपका सेटिस्फेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे कि ये आपकी एसेट मेरे एसएससी की है, और फिर वो नोटिस इशू कर देंगे। 4th से 10 ईयर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ असेट एक्सपेंडिचर एंट्री, ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, और हर साल 50 लाख से ज्यादा की कंडीशन उड़ा दी है इन्होंने। मान लीजिए सर्च हुई 29/3/2022 को, तो असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न तो चूंकि अभी भी फाइल करना है, तो उसके लिए तो रेगुलर असेसमेंट ही होगा। 21-22 का भी रेगुलर हो सकता है, क्योंकि नोटिस की डेट 30 जून 2022 तक है, और जब 143(2) के नोटिस की डेट है तो 148 नहीं हो सकता। ये हमारे कई पुराने केसेस में हेल्ड हो चुका। 20-21 और उससे प्रायर की 147 में जो है वो नोटिस दे सकते हैं। हालांकि लैंग्वेज के हिसाब से तो 21-22 भी वो कवर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि देयर कैन नॉट बी 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स, आदित्य मेडिसिल्स गुजरात हाई कोर्ट और मारवाड़ी शेयर्स फाइनेंस में है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं देंगे उसका नोटिस। 148 का नोटिस क्या तब दिया जा सकता है जब 143(2) अवेलेबल है। डाइवर्जेंट व्यूज है। कैटालिसिस सॉफ्टवेयर 308 ITR 249 में यस कहा है, एक्यूरस यूनिटेक में नो कहा है। ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, जुरिसडिक्शनल फैक्ट यहाँ अगेन लगेगा। जो लोग सर्च सीजर से डील किए होंगे उनको पता होगा कि 153A में फाइनेंस एक्ट 2017 से एक 4th प्रोविजो आया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि assessing officer can go beyond 6th assessment year but up to 10th assessment year if he has in possession books of accounts or any document which suggests that there is escapement of income of the amount 50 lakh or more represented in the form of asset। यही कंडीशन आपके 149(1) स्मॉल बी के अंदर आई है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट। अब उसको बढ़ा के इन्होंने एक्सपेंडिचर, एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इवेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। इसमें मुद्दा ये उठा, गोल्ड स्टोन सीमेंट लिमिटेड का केस है 10 दिसंबर 2021 का, कि उसमें जो चार्टर सीए रिप्रेजेंट कर रहे थे केस को, उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले तो असेसिंग ऑफिसर ये एस्टेब्लिश करे कि एसेट income chargeable to tax representing the asset in an amount 50 lakh or more is escaping assessment, उसके बाद ही वो नोटिस दे सकते हैं। नहीं तो jurisdictional fact एस्टेब्लिश नहीं है, आप नोटिस ही नहीं दे सकते। ट्रिब्यूनल ने बड़ा अच्छा डिस्कशन करके इस पॉइंट को माना, और उन्होंने कहा कि पहले आप jurisdictional fact लाइए, उसके बाद ही आप नोटिस दे सकते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप कहेंगे आप ठीक है 50 लाख की एसेट तो देख लेंगे, नहीं, एसेट आपको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा नोटिस के अंदर कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से या अदर एविडेंस से हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास ये फैक्ट्री बिल्डिंग है जो 1 करोड़ की है, तभी आप नोटिस दे सकते हैं, तभी प्रोसीडिंग्स चालू होगी। तो ये जुरिस्डिक्शनल फैक्ट के ऊपर ये बड़ा जोरदार जजमेंट आया, रिसेंट ही है। अब आप 148 और 148A में चेकलिस्ट अपने को क्या देखनी चाहिए। एक तो देख लें कंसर्न असेसमेंट ईयर 3 साल के अंदर है, 10 साल के अंदर है। अगर बियॉन्ड है तो फिर वो 50 लाख वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। हर ईयर की होना जरूरी नहीं है, नए फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद। अप्रूवल की कॉपी मांगे आप, और देखिए प्रॉपर अप्रूवल लिया है, क्योंकि पिछले लॉ में ये हुआ है
कि अप्रूवल लेना था जॉइंट सीएटी का, ले लिया एडिशनल सीएटी का, जैसे अब यहाँ लेना है प्रिंसिपल सीएटी का, ले लिया जॉइंट सीएटी का, तो आप अप्रूवल के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं और आपका ऑर्डर क्वैश हो जाएगा। सैंक्शन जो है वो प्रायर टू इशुएंस ऑफ नोटिस होना चाहिए। सुमन वामन चौधरी 321 ITR 495 में साफ कहा कि आप बाद में नहीं ले सकते, प्रायर टू इशुएंस ऑफ नोटिस सैंक्शन होना चाहिए। एडिपेट टाइम देना चाहिए 7 दिन का। ये डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग रिप्लाई ऑफ एसएससी। ये नई अभी नए लॉ में दिल्ली हाईकोर्ट का दिव्या कैपिटल का जजमेंट अपन ने पढ़ा और अंकिता ए चौकसी का जजमेंट पुराने लॉ में सेम है। एक जोरदार केस हुआ, ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 AD टू डील विद द इशू इन हैंड। आपने रिप्लाई दिया, आपने कहा मेरी इनकम नहीं थी, मेरा कैपिटल गेन नहीं हुआ, मैंने इस कैपिटल गेन को रिटर्न में दिखा दिया। एसएससी ऑफिसर कुछ और ही पॉइंट पे चला गया और उसने क्या किया, इसमें इस केस में हाईटेक कॉर्पोरेशन के केस में 68 के बहुत सारे केसेस रिप्रोड्यूस कर दिए उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, और फिर उसको ले लिया। कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं, जो पॉइंट इन इशू था उसी पर बात करनी चाहिए। 148A का ऑर्डर ड्यू अप्रूवल पे होना चाहिए, अप्रूवल की कॉपी आप मांग सकते हैं। 148AD का ऑर्डर 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए, जो टाइम लिमिट दी हुई है, नहीं तो बैड इन लॉ हो जाएगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर 148 के नोटिस के साथ आनी चाहिए। और एक और चीज, ईयर ऑफ एस्केपमेंट प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी ईयर खोल के बैठ जाएंगे आप, आपको नोटिस में स्पेसिफिक करना पड़ेगा इस ईयर की इनकम एस्केप हुई है। अस्मत राय राजपाल 32 टैक्समैन 72, रघुबर दयाल रामकिशन 63 ITR 72 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से नोटिस इशू हो सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल 2004-5 से 2010-11 के नोटिस इशू ही नहीं हो सकते, बात खत्म हो गई। 2011-12 टू 12-13, 11-12 भी अब खत्म हो गया 31/3/22 के बाद, 10 साल वाला भी लगाए तो। लेकिन वैसे भी मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022-23 में कौन से नोटिस इशू हो सकते हैं। वैसे भी नए 2011-12, 12-13 का नोटिस नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149 क्या कह रहा है कि पिछले लॉ में नोटिस इशू हो सकता था क्या। पिछले लॉ में 11-12 का, 12-13 का, आज की डेट में अगर हम 21 मार्च 22 को लें तो नहीं हो सकता, तो नए लॉ में भी नहीं हो सकता। 13-14 टू 15-16 सेम सिचुएशन है, क्योंकि 6 साल 31/3/22 को कंप्लीट हो गए, तो इशू नहीं हो सकता नोटिस। 16-17 से लेकर 18-19 तक के यहाँ हो सकता है नोटिस इशू, क्योंकि पिछले लॉ में 16-17 की टाइम लिमिट 31/3/23 को खत्म होगी, तो यहाँ नोटिस इशू हो सकता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स एविडेंस कुछ ऐसा होना चाहिए इन पोजीशन, जो रिवील करे कि इनकम इन द फॉर्म ऑफ असेट 50 लाख से ज्यादा वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 19-20 टू 21-22 नॉर्मल सर्च, सभी केसेस में ये तो नोटिस इशू हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सर्च केसेस में कुछ डिफरेंट है। 12-13 से लेकर 18-19 का सर्च केसेस में अगर 50 लाख से ज्यादा है या 50 लाख है, तो अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है तो वो कर सकते हैं इशू नोटिस। एक इंटरप्रिटेशन और भी आया था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि 1/4/21 से लेकर 30 जून 21 को नोटिस इशू हुए थे। तो एक फोर्थ और थर्ड प्रोविजो है सेक्शन 149(1) में, वो ये कहता है कि अगर एसएससी को कोई टाइम दिया आपने रिप्लाई करने का, या कोई कोर्ट से ऑर्डर इन्वेंशन या स्टे आया था, तो वो टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। अब उसको एक्सक्लूड कर भी दें, मान लीजिए 11 अप्रैल 2021 का नोटिस है और 148A का मान करके उसको एक्सक्लूड कर भी दें, तो भी आज की डेट में 15-16 का नोटिस टाइम बार हो जाएगा जब वो आज देंगे। तो इसलिए फ्रेश नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद दूसरे इंटरप्रिटेशन में भी 13-14, 14-15 के तो इशू नहीं हो सकते, और 15-16 की टाइम लिमिट 31/22 को चलेगी, इसलिए इशू नहीं हो सकती। असेसमेंट कैसे होगा, फेसलेस में होगा, सेक्शन 151A में होगा, फेसलेस होगा। स्कीम नोटिफाई हो गई है, असेसमेंट उसके अंडर में होगा, ये स्कीम नोटिफाई हो चुकी है। ये आज का कंप्लीट हो गया। क्वेरीज? Thank you, sir. Sir, if any members have any query, may post in chat box. Babu ji, chat box open कर देना ना।
सर कुछ क्वेरी आई थी जो मैंने आपको। हाँ वो मैं ले रहा हूँ। जी सर। एक क्वेरी है, इन वन ऑफ केस माय क्लाइंट रिसीव्ड ए नोटिस अंडर सेक्शन 148A. द रिप्लाई टू दैट नोटिस वाज गिवन ऑन 20th March 2022 with full documents given. The due date to reply. Okay. Still notice under section 148 was issued on 30th March 2022. I filed grievance. इन्होंने सब कोशिश किया, तो ये कह रहे हैं इसमें क्या हो सकता है? सर इसमें या तो आप रिट फाइल करो या ऑर्डर आने के बाद अपील करो, क्योंकि ये आपका जो ग्रीवेंस है कि 148A के रिप्लाई में आपने सारी बात दे दी थी, उसके बाद भी उन्होंने नोटिस दे दिया। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। 148A को असेसिंग ऑफिसर्स ने एक वो बना दिया है, सिर्फ एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी जिसको हम बोलते हैं लॉ में, कुछ नहीं करते वो, उसमें बस नोटिस देके उसको कर देते हैं। तो वो चीज रॉन्ग हो रही है, लेकिन इसको रिट में, जैसे हमने कुछ केसेस भी डिस्कस किए, तो रिट में आप अप्लाई करें या अपील करें, और तो कोई इलाज है नहीं। ये FCNR डिपॉजिट के ऊपर जो है इनका एक नोटिस आया है, जो 60 लाख की 50 लाख की फिगर तो मैच कर रही है, लेकिन FCNR डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है, तो उसके ऊपर नोटिस दे दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन टू सेलेक्ट फॉर सेक्शन 148 नोटिस व्हेन मैच्योरिटी इन FCNR डिपॉजिट। सर FCNR डिपॉजिट पे तो खोल सकते हैं नोट, हो सकता है आप सोर्स ऑफ इनकम प्रूव ना कर पाए, तो FCNR डिपॉजिट पे तो खोल सकते हैं। उसका इंटरेस्ट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो उसके उस चीज को तो नहीं कवर कर सकते। इंटरेस्ट ऑन FCNR डिपॉजिट इज नॉट चार्जेबल। रिपेट्रेबल होने से कुछ नहीं होता है, इवन वो असेसमेंट तो खोल सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है उस इनकम का सोर्स प्रूव ना कर पाए। तो ये दूसरी क्वेरी थी जो FCNR डिपॉजिट पे थी। FCNR डिपॉजिट में यह है कि सर अगर इंटरेस्ट है, मान लो 50 लाख से ज्यादा भी है, तो उस पर तो नहीं खोल सकते क्योंकि वो चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, लेकिन डिपॉजिट इटसेल्फ का सोर्स तो वो पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? So checking chat box. चैट बॉक्स में तो नहीं आई। अगर किसी को वैसे ही पूछना है तो हैंड रेज करके वो हाँ वैसे भी पूछ सकते हैं। सर लग रहा है स्पेसिफिक कोई क्वेरी नहीं है, सर मेरी एक पर्सनल क्वेरी है। लग रहा है कोई क्वेरी थी कोई। सर मेरी एक क्वेरी है, हाँ मैंने अभी एक रिटर्न फाइल किया है जस्ट, मतलब हाँ 148 से रिलेटेड नहीं है, हाँ। दूसरी क्वेरी है। रिटर्न फाइल किया मैंने किसी एसएससी का, हम्म और उसके बाद जो मेरा एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ हम्म। वो पता नहीं किसी और पैन नंबर का है और किसी और एड्रेस का है। ऐसा कैसे हो सकता है? अ, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे तो शेयर कर सकता हूँ, हाँ, बट ये हुआ है सर। ये तो कोई सिस्टम की प्रॉब्लम है। हाँ, वो जो एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है एमपी का। अच्छा, जी। तो ग्रीवेंस रेज करो आप। शिवांगी चोपड़ा जी का है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टाइम लिमिट्स टू नोटिस अगेन। कौन सी वाली पूछ रहे हो आप? 149 सिंपल तो ये रही, मैं वापस बता देता। है क्या शिवांगी जी? हाँ, उन्होंने अभी चैट बॉक्स पे डाला है। नहीं, शिवांगी जी आप अनम्यूट करके प्लीज जो क्वेरी है वो रेज कर दीजिए ना। Hello. हाँ जी। Sir, you have explained us that can notices be issued for assessment years prior to 2016-17. So can we repeat the discussion? ओके। एक्चुअली जो आप 13, 14, 14, 15, 15, 16 की बात हम कर रहे हैं, इसमें 50 लाख से कम है तो डिपार्टमेंट ने ही मान लिया इंस्ट्रक्शन में कि हम नोटिस नहीं दे सकते, तो वो तो किस्सा ही खत्म हो गया वहां से। तो अब आपका जो है दूसरा जो पॉइंट है कि मान लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
13, 14 और 14, 15 की जो टाइम लिमिट थी वो 31 दिन 21 को खत्म हो गई थी, तो उसके बाद नहीं हो सकता है। 15, 16 की 31 दिन 22 को हो गई थी। ये इसलिए है कि एक तो दो टाइम लिमिट, एक तो 149 में 3 साल और 10 साल दो टाइम लिमिट दी हुई है। 3 साल तो नॉर्मल है, 10 साल के लिए आपको 50 लाख से ज्यादा का इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर और एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर ऑन एनी इवेंट, ये प्रूव करना पड़ेगा। 15, 16 के लिए लेकिन एक प्रोविजो जो सबसेक्शन 1 सेक्शन 149 में वो कहता है कि ओल्ड लॉ में अगर नोटिस इशू नहीं हो सकता था तो नए लॉ में भी नहीं हो सकता। तो 15, 16 की ओल्ड लॉ में टाइम लिमिट 6 साल की थी, वो खत्म हो गई 31 दिन 22 को, इसलिए अब नए लॉ में भी वो नोटिस इशू नहीं हो सकता, भले ही 50 लाख से ज्यादा का आपका एस्केपमेंट हो। और 16, 17 से 18, 19 का तो जैसा मैंने बताया 50 लाख से ज्यादा वाला है तो अभी खुल सकता है, अदरवाइज ये भी 3 साल के लिमिट में तो ये भी बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? एनी अदर क्वेरी? हेमंत जी आपकी कुछ क्वेरी थी ना? सर आई वाज सेइंग दैट कि वो जो आप एफसीएनआर डिपॉजिट पे बता रहे थे ना सर, वो पहले की एफडी मैच्योर्ड हुई है और हाँ। उनकी सर 1 करोड़ की एफडीआर मैच्योर्ड हुई है और वही उनकी एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट हुई है और उससे ही नई एफडी बनी है उनकी। देयर वाज एन एफसीएनआर डिपॉजिट ऑफ 1 CR and that has been matured during the year, and from that FDR in NRE account the FCNR deposit was in dollars and then it was matured and again and 60 lakh rupees FDR was made in Indian rupees NRE account. So there is no interest taxable in interest on FCNR and interest on NRE in both the cases. And the client is NRI since last more than 15 years. So I don't think there is any reason to issue the notice that the transaction, both the transaction took place in NRE account only. And the client is outside India since last 15-20 years. 148A में आपने रिप्लाई दे दिया? Pardon? 148A में रिप्लाई दिया इस बात पे? 148A का सर पार्टी को रिसीव ही नहीं हुआ, उनके कोई मुंबई में सीए को रिसीव हुआ, उनका टाइम बार उसके बाद उनको रिसीव हुआ है 148 का। क्लाइंट को जो रिसीव हुआ है 148 का सीधा रिसीव हुआ है। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, मतलब क्लाइंट डिड नॉट रिसीव 148A। हाँ, तो इसमें ये है कि 148 में एक्चुअली अब रिटर्न आप फाइल करोगे। रिटर्न फाइल की अपॉर्चुनिटी आ रही है सर 148 में। हाँ वो आ रही है, वो आप फाइल कर दो एक बार। हाँ। तो इसमें क्या है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी कोई रिस्पॉन्स का आपके पास बटन नहीं आ रहा है, तो 142(1) का वेट करना पड़ेगा, फिर वहां अपन ये फैक्ट एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके ये काम हो जाएगा। लेकिन सर 148 में जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें टैक्सेबल इनकम तो कुछ होगी नहीं, देयर वुड बी नो टैक्सेबल इनकम। हाँ तो वो तो कोई बात नहीं है, तो नील का रिटर्न फाइल होगा। नील का रिटर्न फाइल हो जाएगा। थैंक यू। Any further queries? Hello. Sir, may I ask a question? Yeah. We have a difference between information suggesting escapement versus reasons to believe. So under the earlier law, we used to ask the revenue about what are the reasons to believe on the basis of which one notice under 148 is issued. So in under the new law, we have to ask about information suggesting escapement. Is that the case? या इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसको, एसएससी को। Without, I mean, if we do not even ask them about the information, they have to provide us. That is the law. Yeah. That is the law. They have to provide us, and if they do not provide, then you ask in your reply. And reply under section 148A, you ask that what is the information that suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. So why they have changed this language, and what is the major difference? Just the language issue or procedural part? No, it's a procedural part. Actually, prior to 1489, it was the information in possession. Then they bring reason to believe. Now they are again going back to that arena. In fact, in section 34 of Income Tax 1922, there was also that word information in possession. So Okay, they are changing their stand because they think that by this way they can reduce the litigation. Okay. And also in the beginning of the session, you were explaining something about cases which are undergoing appeal.
can you throw a bit light on that discussion? What if a case is already under appeal, notice can be issued or not issued? I mean, Yeah. Actually, under old law, that 147 prior to 1/4/2021, there was a proviso that agar koi, if any order is subject to appeal, then assessing officer can reassess the income which is not covered by that part of the order which is under appeal. right. Suppose the order is made on the basis of some unsecured creditors, and you are in appeal, and then assessing officer got some information that you have capital gain also, then he can again issue a notice for that capital gain matter. That was under the old law. Okay. But under the new law, this proviso is missing. And under the old law, that proviso came because of the Metro Corporation case, Rajasthan High Court. Because before that, a proviso was inserted by Finance Act 2008 only. Prior to that, Metro Corporation said that once the order is made and it is subject to appeal, then you cannot issue reassessment notice. So they inserted a proviso, but in the new law, they forgot to keep that proviso. So now, onwards, the order which will be passed under section 147 under new law, if they are subject to appeal, then new notice cannot be issued for the same assessment year. Okay, sir. Any other queries? I don't think, sir. Any other queries? No specific queries. Okay, sir. Thank you so much, Manoj, sir, for all the guidance and advice. And I would like to call upon Hemant Chugani, sir, for the vote of thanks. And before calling him, one more announcement which Dhaval sir had made in the starting, that we have chess Carryoman TT tournament tomorrow morning. So it would be an honor for us to if you people participate and make it a successful event. Handing over to Hemant, sir. Good evening, members. It has been an honor to be part of this wonderful session. On behalf of Jodhpur chapter of CIRC of ICI, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed and learned speaker, Shri Manoj Gupta ji. Thank you, sir, for giving your valuable time. And sincere thanks to the chairman, secretary, and all office bearers of Jodhpur chapter of ICI who have handled this event throughout. A huge round of applause and thanks to all the participants who made this webinar a memorable one. Thank you to all. Over to you, Pooja. Thank you so much, sir, for the vote of thanks. And thank you, Manoj, sir, for joining us and sharing your valuable words and skills. Thanks for the opportunity. Thanks to Dhaval ji. Thank you, sir. Shall we end the meeting?